Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about the methods for calculation of standard deviation for discrete series of group data. As we know, the standard deviation for discrete series can be calculated by two methods. The first method is direct method and the second method is shortcut method. Now, we will try to understand with the help of this question how to calculate the standard deviation for discrete series of group data by direct method. The direct method is also known as the actual mean method. Now here the question is calculate the standard deviation for the following data. To solve this question, first of all we will draw a table having 6 columns. तो इस तरह से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और पहले कॉलम हम लिखेंगे x, कैप्शन क्या लिखेंगे x, एंड विल राइट द वैल्यूज ऑफ x इन दिस कॉलम 4, 8, 11, 17 एंड सो ऑन. And in next column we will write the caption f, the frequency, and here the frequency, and we will note these frequencies into this column. Now we will add the values of frequency and to get sigma f or summation of f. Here the summation of f is 30. Now in next column we will multiply the x and frequency, then we will get fx. Now 3 4 ja 12, and here 40, then 99, then 85 and so on. तो इस तरह से हम fx को कैलकुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी की x के साथ मल्टीप्लाई करके, और फाइनली फिर हम इनका समीशन करेंगे, देन विल गेट सिग्मा fx. नाउ द सिग्मा fx इक्वल टू 420. नाउ वी विल कैलकुलेट द मीन फॉर द गिवन डेटा. Here we apply the formula of mean. Mean x bar equal to sigma fx upon sigma f. Now here we have the value of sigma fx is 420. 420 है और sigma f कितना हमारे पास 30, तो डिवाइडेड बाई 30. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 420 को 30 से हम डिवाइड करेंगे, देन विल गेट 14. विल गेट द आंसर 14. Thus here the mean x bar equal to 14. Now in next column we will write the caption x minus x bar equal to d. अब हम इस कॉलम में d डेविएशन और डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे. डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यूज हैं, इन x की वैल्यूज में से हम जो हमारा x बार मीन निकला है x बार 14 को माइनस करेंगे, देन विल गेट द d. नाउ हियर इन फर्स्ट कॉलम विल राइट 4 minus x bar 14, then we will get minus 10, and in next x is 8 minus 14, then we will get minus 6, and likewise we will calculate the value of d for the rest given datas. तो इस तरह से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ इन नेक्स्ट कॉलम we'll कैलकुलेट द डी स्क्वायर. अब हम डी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे. जो डी की वैल्यूज हमें मिली हैं इनका हम स्क्वायर कर लेंगे जस्ट, और उनके जो साइंस हैं उनको हम इग्नोर कर लेते हैं. तो यहां पर इस तरह से डी को स्क्वायर कर लेंगे. 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10 100. 6 का हो जाएगा 6 इंटू 6 36. 3 का हो जाएगा 9, एंड 3 का 9, एंड 6 का 36, एंड 10 का अगेन 100, एंड 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324. Now in the last column we will calculate the fd square. हम इस d स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ. तो हम यहां पर fd स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे. नाउ 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा इस कॉलम में 300. द नेक्स्ट वन इज 36 मल्टीप्लाइड बाई 5, देन विल गेट 180, एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम एफ डी स्क्वायर को कैलकुलेट करें. फाइनली वी विल सम these all values to get sigma f d square.
Now the sigma FD square is 1374. Now we will calculate the standard deviation, and here we apply standard deviation sigma equal to under root sigma FD square upon sigma F. Now here in the table sigma FD square equal to 1374 and sigma F equal to 30. Now we will put these two values into this formula to get the standard deviation. अब हम क्या करेंगे, इन values को फॉर्मूले में रखेंगे, then we'll get the standard deviation. तो here under root 1374 divided by 30. In next step we'll divide 1374 by 30, then we will get 45.8. Now अब इसका जो है हम क्या करेंगे, अंडर रूट 45.8 का जो हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, then we'll get 6.767. Thus the standard deviation for the given data will be 6.767. Now we will use the next method, that is shortcut method, to calculate the standard deviation for discrete series of group data with the help of this question. Now here the question is, find the standard deviation for the following data. To solve this question we will draw a table having 6 columns. तो हम इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे. अब पहले कॉलम हम कैप्शन लिखेंगे x. नाउ इन दिस कॉलम वी विल राइट द वैल्यू ऑफ x. ये वैल्यूज को हम यहां लिख लेंगे 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन. नाउ नेक्स्ट कॉलम हम कैप्शन लिखेंगे f और फ्रीक्वेंसीज को जो यहां पे दी है, इन फ्रीक्वेंसीज को हम इस कॉलम में नोट कर लेंगे. उनके x के अगेंस्ट 2, 7, देन 11, देन 15, then 10, 4 and 1. अब हम इस कॉलम में फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, then we will get the sigma f. Now here the sigma f is 50. Now in next column we will calculate the d. तो d कैसे कैलकुलेट करेंगे, x minus a equal to d. Now here the d is the deviation or difference. x क्या है, x ये वैल्यूज हमें जो दी हुई है क्वेश्चन में, these are the x and the a is important. Now here the a is the assumed mean, जिसको हम कह रहे हैं शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड का मतलब है यहां पर हम मीन को कैलकुलेट नहीं करते, मीन को एज्यूम कर लेते हैं किसी एक वैल्यू को. नाउ हियर हम x में से किसी एक वैल्यूज को हम एज्यूम कर लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल हियर द 13 इज एज्यूम मीन, द 13 इज एज्यूम मीन. नाउ हियर विल राइट लेट अस एज्यूम दैट द एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू 13. अब हम इस कॉलम में क्या करेंगे, इन x की वैल्यूज में से जो एज्यूम मीन है हमारी 13 को माइनस करेंगे, देन विल गेट दी d. तो हियर विल राइट 10 minus 13 equal to minus 3. Likewise here 11 minus 13 equal to minus 2. Next 12 minus 13 equal to minus 1 and so on. तो इस तरीके से हम d को कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ इन नेक्स्ट कॉलम वी विल कैलकुलेट दी d स्क्वायर. d स्क्वायर क्या करें, जस्ट हम इसका स्क्वायर कर लेंगे. नाउ 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 जा 9. उसके साइंस को हम ओमिट कर लेंगे यहाँ पर स्क्वायर करने पे. 2 2 जा 4, लाइकवाइज 1 1 जा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का फिर अगेन 1, 2 का 4 एंड 3 3 जा 9. नाउ इन नेक्स्ट कॉलम वी विल कैलकुलेट दी FD. FD का मतलब है हम इस फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, देन विल गेट दी FD. तो हियर 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6. लाइकवाइज 7 इंटू 2 -14 and 11 into -1, then we'll get -11. 15 into 0 we get 0 and so on.
तो इस तरह से हम FD को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, सिग्मा FD हमें चाहिए, इनको सम करना है, देन विल गेट सिग्मा FD। अब सिग्मा FD को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम साइंस को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को एक साथ ऐड कर लेंगे और प्लस वैल्यूज को, पॉजिटिव वैल्यूज को हम एक साथ ऐड कर लेंगे, फिर उनको फाइनली फिर हम ऐड कर लेंगे, देन विल गेट FD सिग्मा FD। तो यहां पर हमारा हो जाएगा -6 -14 -11 एंड प्लस में हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं, 10 8 एंड 3। तो हम लिख लेंगे प्लस की जो वैल्यूज होगी हमारी 10 और 8 18 प्लस 3 कितना हो गया +21 एंड माइनस की वैल्यूज है हमारे पास 6 एंड 14 कितना 20 एंड प्लस 11 31 -31 देन विल गेट -10। तो हियर द सिग्मा FD इज -10। Now in last column we will calculate the FD square means D square की मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ F के साथ, then we'll get FD square। तो here 2 into 9 कितना हो जाएगा 18, the next 7 into 4 28, then 11 into 1 then we'll get 11 and 15 into 0 then we'll get 0 and likewise we will calculate the rest values। अब हम क्या करेंगे, FD स्क्वायर की ईच वैल्यूज को सम कर लेंगे, इनका समीशन करेंगे, देन विल गेट सिग्मा FD स्क्वायर। तो हियर सिग्मा FD स्क्वायर इक्वल टू 92। नाउ we will calculate the standard deviation by applying the formula standard deviation sigma equal to under root sigma FD square upon sigma F minus whole square of sigma FD upon sigma F। Now as per table we have the sigma F is 50, sigma F is 50, then sigma FD equal to -10 and sigma FD square equal to sigma FD square equal to 92। Now we will put these values into this formula to get the standard deviation। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में रख लेंगे सिग्मा FD स्क्वायर, सिग्मा FD स्क्वायर कितना हमारे पास 92 अपॉन सिग्मा F, सिग्मा F इज 50 माइनस होल स्क्वायर ऑफ सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, सिग्मा FD इज -10 अपॉन सिग्मा F इज 50। Now we'll solve this 92 अपॉन 50 माइनस इनका स्क्वायर कर लेंगे हम, 10 का स्क्वायर हो जाएगा -100 एंड 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। नाउ फर्दर वी विल सिंप्लीफाई दिस वन, 92 को 50 से डिवाइड करेंगे देन विल गेट 1.84, 100 को डिवाइड करेंगे 2500 से देन विल गेट -0.04। इन द नेक्स्ट स्टेप विल राइट 1.84 माइनस रहेगा, इसको माइनस करेंगे, माइनस ये ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस रहेगा मल्टीप्लाई होने पे 0.04। इन द नेक्स्ट इसको माइनस कर लेंगे 1.84 में से 0.40 को, देन विल गेट 1.80। अब कैलकुलेट कर लेंगे 1.80 का अंडर रूट निकालेंगे, देन विल गेट द आंसर इज 1.34। Thus here the standard deviation for the given data will be 1.34। Now, this is all about the calculation of standard deviation for discrete series of group data by direct and shortcut methods.
Thanks for watching this video and please don't forget to watch the next part of this video.